I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Once again, welcome back to my channel Brain Gain with another topic. In my last lecture number 13, I was discussing about how would you use the method of this section to solve x plus 2 whole square y double prime, that is second derivative of y, plus x plus 2 in y prime, that is first derivative of y, plus y is equal to 0. So in that method it was just you can put x plus 2 is equal to t, and then it will be t square y double prime plus t into y prime plus y is equal to 0, and you can solve as an actual. And आप फिर जैसे एक सोल्यूशन सपोज करते हैं x की पावर m, वहाँ पर आप t की पावर m एक सोल्यूशन सपोज करके आगे चल सकते थे. आज कुछ इसी तरह की हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कि अगर हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट हो तो हम उसको, अब जैसे उसमें हमने एक ट्रांसफॉर्म किया, हमने x प्लस 2 को t पुट किया, यहाँ पे आज हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कॉशी आयलर वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसे कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कैसे लेके जा सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद दैट, दिस इज लेक्चर नंबर 14. इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ पढ़ सकते हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी पढ़ सकते हैं, और भी कोई मेथड है तो उससे भी सॉल्व करना सीखेंगे. सो दिस इज लेक्चर नंबर 14. यस, एंड कॉशी आयलर, you should get that my point. Cauchy Euler variable to constant coefficient differential equation. So for constant coefficient, in our previous we used and you see we are going to deal it with for homogeneous case. In our previous let's suppose we have the second derivative of the equation. If we suppose the answer in the with constant coefficients, we suppose the answer as e की power mx, and let's suppose we have second derivative equation, so our answer will be supposed like that: c1 e की power m1x plus c2 e की power m2x. Okay, so for variable, but this is for constant coefficients. And for variable coefficients, we have the solution like y is equal to c1 e की power not e की power, it was just x की power m, and make sure that it was x, that y derivative is taken with respect to x. So this is the independent variable x here too. So y1 c1 e की power m 1 plus c2 x की power m2. So if I take natural log, look like that, e की power natural log of x is equal to x. So you can say that we can replace x here with this e की power natural. So y is equal to c1 e की power natural log of x and m1 plus c2 e की power natural log of x m2. That would be the answer. Okay, then we can use, you know that
Okay, let that y is equal to c1 e की power m1t, m1 as it is natural log of x is equal to t, plus c2 e की power m2t, and here t is equal to natural log of x. By these specifications we will change our variable coefficient differential equation to constant coefficient differential equations. Okay, and what is x? X is equal to e की power natural log of x is t. X is this and t is this. We have two transformations. Now we will going to discuss the derivative. If there is any derivative with respect to x and we convert that into independent variable t, then how the derivatives look like. So you have to just remember these things because I am going to raise this. Okay, so actually we have the discussing now derivatives. We have dy over dx. In your FSC you have studied about the chain rule, so it can be written as dy over dt multiplied by dt over dx, and that is what we are going to do is we know that d over dx, what was t? T is equal to natural log of x. We will take its derivative, and other thing is dy by dt. So when we take its derivative with respect to t, sorry, with respect to this was dt over dx, so that will become 1 over x. Anything with this natural log is come in denominator, and we take the derivative further of denominator, and derivative of x is further is 1, so no need to write that. Dy by dt. So you see that dy by dx in terms of t is just equal to 1 by x dy over dt. Because we are discussing case with the second derivative, so now we'll be going to formulate the equation for the second derivative. We know that d square y over dx square is equal to d over dx into dy over dx, second time derivative of this thing, and we know that dy over dx is equal to 1 over x into dy over dt. Here is going to be applied the product rule, so I will just take 1 over x as it is, and the derivative of this thing will be d square y by, okay, take 1 over x as it is, and it will be written as d over dx into dy by dt. Now we will take dy by dt as it is, and d by dx into 1 by x as it is. We have taken the derivative of this thing and let it as same. Now we let it as this same and taken the derivative of this thing. Moving forward, so I can write as dy by dt
dy by dt as again 1 over x and this with d over dt into dy by dt by chain rule multiply by dt by dx. So you can say that this dt can cancel by this and it will be again d by dx and that thing plus dy by dt and derivative of this thing with respect to x will be minus 1 over x square. So moving further, you know that this thing is keep on going same. So we will let as 1 over x as it is. Now what is dy by dt? So 1 over x and it will be taken as this thing d square y by dt square, this thing, and multiply by dt by dx. What is t? That is this thing dt by dx, that is this thing, that is this thing. So it is 1 over x again. Now we are having you can say that it is minus 1 over x square into dy by dt. So second derivative can be written as 1 over x square taken common into d square y by dt square minus dy by dt. So this was our first discussion, that we see that what is x and what is t when we are going to convert the variable coefficient to constant coefficient differential equation, and we see what is thing common in between them. Then we let the other thing named as t, and what is t is equal to natural log of x, and what is x, it is you know about that x is e to power t. And then we see what is first derivative of y with respect to s in terms of t, and the second derivative with respect to x in terms of dy by dt, you can say that. So we will see how we will be going to use these things in solving problems. So we have an example. That is x square y double prime minus x into y prime. Y double prime is the second derivative of y with respect to x, and y prime we are dealing with the derivatives with respect to x. Minus x y prime plus y is equal to natural log of x. So let x here as it is, and you know that what is double derivative in terms of t, because we are going to solve this equation with because it has variable coefficients. Now we are going to transform it into terms of constant coefficients. So this is 1 over x square into d square y by dt square minus dy by dt. So you see that this x square is going to be cancelled by this, and you will see amazingly that we are transferred into constant coefficient type equations. Here is minus x
and you have to make sure before going to solve the differential equation, when you are going to convert that equation into a constant coefficient equation, you have to make sure that it has the same degree, that double derivative, 2 times derivative, and the power is 2. 1 time derivative, so the power is 1, and no derivative, so the power is 0. There is no derivative of y, so there is no dependent variable. That is, if y is 0, that is it's no derivative is taken, so x is 0 and x is 0 is 1, so 1 can be ignored in writing. So minus x, and how we can write y prime in terms of t is 1 over x into dy by dt. This x is going to be cancelled by this one, plus y. We do not want our anything here in terms of x, so what is natural log of x? This is equal to t, because our equation is now in terms of t as an independent variable. So I will rewrite this equation: d square y by dt square minus dy by dt, and minus dy by dt will be minus 2 dy by dt plus y is equal to t. You can see that it has two types of solution will occur. First one, we will take the case as homogeneous, and the second case will be going to take as non-homogeneous. To solve the non-homogeneous part, I will solve it all for only one. In the next questions, I will just go with to transform it into constant coefficients, and then the rest of part will be done by you guys. So now we are going to suppose that for yc, that is, this is going to be y double prime with respect to t minus 2 y double y with respect to t have plus y is equal to 0, and let y is equal to e की power mt. First we suppose the solution with x, because x was independent, now t is independent variable, be our solution. So as usual, we will write it as, if we take its second derivative, it will be m square e की power mt. You guys have learned this thing in the previous lectures. If not, go and take them and have practice. Minus 2m e की power mt plus e की power mt is equal to 0. E की power mt is taking common, m square minus 2m plus 1 is equal to 0. emt is not going to be is equal to 0, so m square minus 2m plus 1 is equal to 0. Something is equal to 0, so that this equation will be equal to 0. So we are going to solve this one and taking out the value for m. So this look like m minus 1 whole का square is equal to 0, so m is equal to 1. So we have m, so the solution will be, because we have a second degree equation, so our yc will be equal to c1 e की power mt m1t plus c2 e की power m2t. If we take again m minus 1 is equal to 0, that is m is equal to 1, so yc is equal to c1 e की power t plus c2 e की power t. Again you can take the e की power t common, and c1 plus c2 that can be generated. Okay, I was forgetting something, that
if this thing is going to repeat, you multiply the independent variable with the next thing. So c1 e की power t and c2 e की power t, this is going to repeat, so we will multiply t with the second answer. So now you can take yc is equal to e की power t common and c1 plus c2 into t. You can either write this one, either write this one. So this was case for yc. Now we are going to deal for yp. In yp what we do, हम लोग अपने नॉन होमोजेनियस पार्ट को देखते हैं और उस जैसे एक सोल्यूशन लेट करते हैं. अभी हमारे पास yp में t है, तो हम yp के लिए कौन सा सोल्यूशन लेट करेंगे, a प्लस बी इंटू टी, कि इस चीज़ के लिए कोई इस तरह का सोल्यूशन ऐड होगा. फिर हमारे पास टू डेरिवेटिव्स हैं, तो हम yp का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो b रह जाएगा, और जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिर्फ 0 हो जाएगा. हमारी जो इक्वेशन थी, अगर आप उसे याद करें तो वो सेकंड डेरिवेटिव था तो वो 0 हो गया, -2 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव था तो वो b हो गया, और प्लस y था तो y हमारे पास प्लस हमारे पास y था तो वो था a प्लस बी टी और इज इक्वल टू 0. बल्कि अब हम नॉन होमोजेनियस पार्ट के लिए सोल्व करें तो हम इधर टी भी लेना है. सो अगर अब हम इस चीज़ को देखें और इसको दोबारा लिखें तो इट कैन बी a माइनस 2b प्लस बी टी इज इक्वल टू टी. अब अगर हम इस जगह पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करें फॉर टी, तो हमारे पास इस जगह पर भी कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स फॉर टी, तो हमारे पास इस तरफ t के लिए b है और इस तरफ t के लिए 1 है, तो आपका b जो है वो 1 आ जाएगा. अगर हम सेम चीज़ अब कांस्टेंट के लिए देखें, तो हमारे पास कांस्टेंट के लिए इधर a माइनस 2b है और उधर कुछ भी नहीं है, तो हम a माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू दिस, सो a कैन बी इज इक्वल टू 2. अब हमने अपना सोल्यूशन कैसा लेट किया था, yp, ये था yp, तो हम yp को लिख देंगे a हमारे पास 2 है प्लस b हमारे पास 1 है, तो 2 प्लस टी. नॉन होमोजेनियस पार्ट के लिए ये होगा सोल्यूशन. अब हम जनरल सोल्यूशन लिखेंगे. जनरल सोल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी. हमारे पास वाई सी क्या आया था, c1 e की पावर t प्लस c2 t इंटू ई की पावर t प्लस वाई पी क्या था हमारे पास 2 प्लस t. हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को साथ लिखा. अब आपने ये देखना है कि ये तो हमारा सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ टी. हमारे पे जो शुरू में सवाल था हमने तो उसका सॉल्यूशन निकालना था, और वो था इन टर्म्स ऑफ एक्स. हम यहाँ पर अब टी की वैल्यू डालेंगे ताकि अपने सॉल्यूशन को, हमने ये सिर्फ सॉल्व करने की आसानी के लिए ऐसा किया कि हमने वेरिएबल कोफिशिएंट से कांस्टेंट कोफिशिएंट में गए, और अब कांस्टेंट कोफिशिएंट से आंसर निकालने के बाद हम उसको दोबारा ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट वाले आंसर के अंदर. अभी ये आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट में होता है e की पावर t इस तरह से, उसके अंदर तो x की पावर
सन टाइप आंसर निकल रहा होता है। सो y इज इक्वल टू c1, t की वैल्यू है नेचुरल लॉग ऑफ x e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आप देख सकते हैं e और नेचुरल लॉग आपस में कट सकता है, तो c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू ये आपस में फिर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा c2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब अगर आप गौर करें, क्योंकि हमारे पास रूट्स रिपीट हुए थे, तो हम क्या करते हैं, जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर जब हमारे पास रूट्स रिपीट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दूसरी दफ़ा जब वो रूट लिखने लगेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने t को अगेन मल्टीप्लाई किया। पर जब हम वेरिएबल कोएफिशिएंट में दूसरी मरतबा रिपीट होता है हमारा रूट, जैसे यहाँ हुआ x की पावर 1 जहाँ भी और x की पावर n, क्योंकि हम x की पावर m सोल्यूशन सपोज करते हैं, तो फिर हमने नेचुरल लॉग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस वाज आवर आंसर। अब मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चंस दे दूंगा जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे और ये आपकी ही बुक से होंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस 9x वाई प्राइम माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ देख रहे हैं हमारे पास डबल डेरिवेटिव है तो x की पावर x स्क्वायर है, फर्स्ट डेरिवेटिव तो x एक है। इस तरह से आपने इस चीज़ को भी यकीनी बनाना है और आपके पास इसके लिए सिर्फ वाई सी होगा सोल्यूशन। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 10x वाई प्राइम प्लस 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए वाई सी भी होगा वाई पी भी होगा, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस पार्ट है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है आपकी। आगे एक सवाल आ रहा है ये वाला, x इंटू वाई डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। इसके अंदर आप देखिएगा कि ये देखें x है हमारे पास, हमें तो x स्क्वायर चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन से x को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन भी बैलेंस रहे। तो यहाँ पर वो x मल्टीप्लाई आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा तो ऐसे ही उसके साथ मैच हो जाएगा और ये x की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप अगर आगे जाएं, फिर आप इसको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। और अपना जो हमने और मेथड एक पढ़ा था, देख लेते हैं क्या नाम था उस मेथड का। जो हमने कॉशी आइलर इक्वेशन के लिए असल में पढ़ा था जब हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे थे। यस, दिस इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, और दूसरा जो है वो अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड होता है। सो फिर इसके बाद हमारे पास एक और सवाल है, आप इनमें से किसी सवाल को दोनों तरीके से ट्राई करके देखिएगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स और अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट मेथड है, मेक श्योर योर आंसर विल बी गेटिंग सेम, और दोबारा उसको वेरिएबल कोएफिशिएंट मेथड वाले से भी सॉल्व कर लीजिएगा, एक दफ़ा कांस्टेंट कोएफिशिएंट से भी ये कर लीजिएगा। इट विल मेक you will make effort and you will learn something from this. X square y double prime minus x into y prime plus y is equal to 2x, and make sure you जब आप करेंगे तो आप x को भी t में फिर बाद में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। Another practice question is x square y double prime plus x into y prime minus y is equal to natural log of x. ओके, ये अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप लोगों से नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं एक और लिखने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे अभी।
So can a Cauchy-Euler differential equation of lowest order with real coefficients be found if it is known that two and 1 minus iota are roots of its auxiliary equation। हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, फिर भी एक दफ़ा कर लेंगे अभी। कैरी आउट योर आइडियाज, यानी कि आपको रूट्स गिवन है, इस मतलब आपने किधर जाना है, इक्वेशन की तरफ जाना है। पहली बात तो ये कि आपको समझ लें एक Cauchy-Euler ऑफ लोएस्ट ऑर्डर विद रियल कोएफिशिएंट्स एक 2 है, यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन है एक तो हो गया m1 इज इक्वल टू 2, दूसरा वो कहते हैं m2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। हमने ये बात पढ़ी है कि जब भी 1 माइनस आयोटा आपके पास आएगा या यानी कि कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा तो वो हमेशा a प्लस माइनस आयोटा बीटा b की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास एक तीसरा रूट भी होगा 1 प्लस आयोटा। आपके पास ये 3 रूट्स हैं, ठीक है। आप इससे इन तीनों को m-2 m माइनस 1 माइनस आयोटा और m माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी m³ माइनस 4m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इससे आपने खुद आगे ना इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन किस तरह से होगी मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसमें आपने कुछ चीज़ें अननोन होंगी, आपने वो भी खुद फाइंड करनी है, और अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे और मैं करवा दूंगा। जब हम ये देख लेंगे और हमारी इक्वेशन कुछ उस तरह में, तो हम कहेंगे, हमें पता लगेगा कि हमारा आंसर कुछ इस तरह से है x³ इंटू वाई ट्रिपल प्राइम प्लस a कोई कांस्टेंट हो सकता है x स्क्वायर, y डबल प्राइम प्लस b कोई कांस्टेंट हो सकता है x इंटू वाई प्राइम प्लस c और y इज इक्वल टू 0। इस तरह का कोई सोल्यूशन होगा। अब इसमें हमारे पास a है, b है, c है अननोन, तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपके लिए एक तरीके, आपके लिए एक चैलेंज है। तो अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे बता देंगे। फिर उसके बाद अगर आप अपनी बुक का व्यू करेंगे तो आपको कुछ इनिशियल कंडीशंस वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें मैं एक आपको करा देता हूँ। दूसरा आप खुद करेंगे और फिर देख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन है आपके पास कि y0 जो है वो y0 के बराबर है, y डैश ऑफ 0 जो है वो आपके पास y1 के बराबर है। अगर आपके पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर y डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, तो इसका आपने आंसर निकालना। ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है, तो हमारे पास आंसर किस तरह से होगा, y इज इक्वल टू x की पावर m। तो मैं यहाँ पे करूँगा m स्क्वायर, और जब मैं x की पावर m का डबल डेरिवेटिव लूँगा तो इट विल बी m इंटू m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर m इज इक्वल टू 0, क्योंकि y डैश होगा, m शुरू में आ जाएगा x की पावर m माइनस 1, और फिर y डबल डैश होगा m इंटू m माइनस 1 और x की पावर m माइनस 2। तो आप जब ये करेंगे
सेकंड डेरिवेटिव में ये पुट करेंगे तो x की पावर -2 और इधर से ये वाला एक्स्ट्रा केयर आपस में कट रहेगा तो आखिर x की पावर m रह जाएगा, m इंटू m माइनस वन एज इट इज़। तो आप x की पावर m तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो फिर आपका यही m इंटू m माइनस वन 0 के बराबर होगा, यानी कि एक आपको m की पावर वैल्यू 0 मिल जाएगी और एक आपको m की वैल्यू 1 मिल जाएगी। आप इससे अपना सोल्यूशन लिखेंगे कि y0 के लिए एक सोल्यूशन लिखेंगे जो कि होगा पहले आप अपना y लिखेंगे जो कि होगा c1 प्लस c2 यानी कि c1 प्लस x की पावर 0 दैट इज़ 1, c2 x की पावर 1 जो कि हो जाएगा। अब आप इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन पे x 0 है तो वो y क्या हो जाएगा y0 फर्स्ट इनिशियल कंडीशन लगाते हुए, और c1 एज इट इज़ प्लस c2 x 0 है तो आपका c1 जो है वो y0 के बराबर होगा। सेकंड इनिशियल कंडीशन लगाऊंगा तो जब आपका y1 यानी कि y डेरिवेटिव ऑफ 0 तो आपकी ये इक्वेशन है, आप पहले तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा, इससे हमें c2 की वैल्यू मिल जाएगी, होप सो। मैंने लिखा था y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू एक्स। मैं अगर y का डेरिवेटिव लूँगा तो c1 का तो 0 हो जाएगा प्लस c2 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और c2 तो कांस्टेंट था। अब मैं सेकंड यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y डैश क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और c2 क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पर तो ये c2 इज इक्वल टू y1 हो जाएगा इनिशियल कंडीशन पे। तो हमें c1 और c2 की वैल्यू मिल गई। अब हम अपने सोल्यूशन को लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू c2 इज y1। तो बेसिकली ये आपका सोल्यूशन है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसमें भी यही कंडीशन लगनी है इनिशियल कंडीशन, बट इस बार इक्वेशन चेंज है, इसी का पार्ट है एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम प्लस 6y इज इक्वल टू 0। इसी इनिशियल कंडीशन के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। एक बी पार्ट भी है इसका, ये सी पार्ट था। अब बी पार्ट को अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस 2x वाई प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद आपके पास अच्छा आप टेन टू कांस्टेंट करके कोएफिशिएंट करके वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी यूज़ करें, दूसरे मेथड भी यूज़ करें, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, पर इट विल कवर योर एसेंशियल्स बेसिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो अगला लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा और वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे होगा। लैप्लास एप्लीकेशंस हम देखेंगे थोड़ी सी, और लैप्लास आगे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर्स में भी ये एप्लीकेशंस यूज़ होंगे। सो आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।